Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surface. So, as in previous lecture, we learned what is C and why it is so important in today's era. So, today we will learn some, or we can say all the basic terms related to C. So, let's start. We can see that prior to C, a language called ALGOL was used, which was introduced by the international group. Then came into use the BCPL language, that is Basic Combined Programming Language, which was introduced by Martin Richards. Then B language also adds to the features of C, which was introduced by Ken Thompson. Now let's look at the further modifications of C. K and RC. It refers to the standards for C language defined in the first edition of the C programming book. This provides various language features such as standard input-output library, long int data type, unsigned int data type, and compound assignment operator. Then came into use the NCC, which was introduced by the ISO committee. That is why it is also called ISO standard. Then by the end of 1999, there came C99. It introduced various new features such as data types, long int, variable length arrays, etc. Then the last modification came and it said that there will be no new features added until verified by the current application. C was firstly used to rewrite the Unix operating system. As we have already discussed the features and importance of C, let us discuss about the first basic term, that is character set. A character set is used for a particular language. It is words, numbers, expressions that depend upon the computer on which program is run. So character set includes letters, digits, special characters and white spaces. Let us see some examples. Letters, as we all know, uppercase and lowercase a to z, decimal digits 0 to 9, and special characters. Let us look at the special characters. We commonly use comma, then period, that is also known as full stop, semicolon, colon. They're very important in terms of C, and many more. You can take a look over here. Let us look at the white spaces. What are white spaces? These are the blank spaces, horizontal tab, carriage return, new line, etc. that we use during the programs. They also have a significant use. Now let us come to tokens. What are tokens? It is the smallest individual unit. What do you mean by it? Like हम कोई भी प्रोग्राम को सबसे बेसिक इन टर्म्स में तोड़ सकते हैं. सो सी में तो हमारे पास 6 टोकन्स होते हैं. फर्स्ट इज कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, string, identifiers, operators and special symbols. Let us take a look at them. So firstly, keywords. What is a keyword? It is a reserved word or we can say predefined words. मतलब कि C की लाइब्रेरी में उनका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है and we cannot change them by any means. There are 32 keywords and 8 additional keywords. These are the 32 keywords that we use commonly. Auto, break, double, float, return. What do they mean? We will discuss them when according to the requirements. Identifiers. What is an identifier? Identifier तो नेम से ही पता चल रहा है, लाइक कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें. इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्रोग्राम एलिमेंट. लाइक हम तो सब ह्यूमंस हैं बट हमें कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नेम्स रखते हैं. ऐसे ही हम प्रोग्राम्स तो सभी लिखते हैं बट उनका कुछ नाम देते हैं ताकि हम जब उनको ओपन करना हो तो हमारे लिए ईजी रहे. ऐसे कॉन्स्टेंट्स के भी हम नेम दे सकते हैं ताकि हमें जब बार बार यूज़ करना हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस, हम उन सबके नेम दे सकते हैं. देन वो हम अपर केस और लोअर केस दोनों में यूज़ कर सकते हैं बट सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो दोनों अपर केस और लोअर केस का डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर अपर केस में राम लिखती हूँ और लोअर केस में राम लिखती हूँ, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा. दो वेरिएबल्स की तरह उनको ट्रीट करेगा. वी कैन ऑल्सो यूज़ अंडरस्कोर्स एंड इन द आइडेंटिफायर्स. वट इज़ द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर? एज वी नो ब्लैंक स्पेस तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इन द नेम. सो अंडरस्कोर हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. सो लेट्स लुक एट सम रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स.
Firstly, the first character should be an alphabet or underscore. No numbers can be used. It may consist of letters, digits and underscore. मतलब बीच में आ सकते हैं letters. बीच में आ सकते हैं digits. Now, Turbo C, which we are going to use, it uses 31st characters as significant. It means कि हम मोस्टली 31 करेक्टर्स तक सम अप कर देते हैं अपने नेम को, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग लिखना मतलब कि इट इज़ ऑफ नो यूज़, वेस्ट ऑफ टाइम. देन कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते कभी भी एज एन आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर में वाइट स्पेसेस नहीं होते एज आई टोल्ड यू. और लोअर केस एंड अपर केस अलाउड है, बट दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स. सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. Some valid identifiers are string, sum, total, name, area, etc. Invalid identifiers are int, as they are keywords. Roll number, it has a white space. 5ab, it has a digit at its starting. And sum minus one, it uses a operator symbol. Now let's come to the next term, which is constant. Now we all are math student. Usually we know what is a constant. A constant is a fixed value which cannot be changed, but in C it has slightly different meaning. It cannot be changed during the execution of a program. So let us take an example to understand the difference between variable and a constant. Let's say I have taken a variable which is a is equal to 2. Now when I will give the statement a is equal to a plus 6, then the compiler of C will add 6 more to the 2 and then it will become 8. But when I take a constant 2, then there is no chance and no way to change it to any other number or character or any integer. So we know that throughout the program this 2 will remain 2, or any other character like A, B, C, it would remain the same. We cannot change its meaning. So I think by now you would have understood the difference between constant and variable. So let us look at this flow chart. Constants are of two types, that is numeric constants and special symbol. Numeric मतलब जिसमें digits होंगे. Digits कैसे? Integer and real. मैथ स्टूडेंट्स हो इतना तो पता ही होगा कि integer का मतलब होता है जिसमें कोई भी decimal नहीं आता, कोई fraction नहीं आती, and real का मतलब होता है it contains every type of digit, whether it is a fraction, it is an exponent. So now look at integer constants. Integer constants refers to a sequence of digits without a decimal point, as I told you. Further, integer type of constant are of three types, that is decimal integer, octal integer and hexadecimal integer. So in LOC we have studied that decimal integer means 0 to 9 digits and it can have a preceded sign of plus or minus. Some examples of decimal integer are 30 minus 320 0 455 प्लस 78. प्लस से हमने इससे लगाया कि हम प्लस 78 लिखे 78 लिखे, बात तो सेम है, मतलब हम प्लस भी ऐड कर सकते हैं आगे, बट हम उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, कॉमास यूज़ नहीं कर सकते, नॉन डिजिट करेक्टर्स लाइक डॉलर का साइन ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इलीगल नंबर्स हो जाएंगे. नाउ लेट अस कम ऑक्टल इंटीजर्स. ऑक्टल इंटीजर्स दे कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7. हमको ये तो पता ही है, लॉजिकल में हमने पढ़ा है कि 0 to 7 वाले ऑक्टल इंटीजर्स होते हैं. फिर बट हम उसको सी में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब 0 to 7 में हमने कोई नंबर लिखा, वो डेसिमल भी हो सकता है. सो वी यूज़ अ प्रीसीडिंग 0 which tells it is an octal integer. Some examples are 0300, 0375 etc. Hexadecimal integer जिसमें 0x और 0 लार्ज मतलब कि कैपिटल X भी हम यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसको इससे डिफ्रेंशिएट करना है. अगर हम खाली 0 यूज़ करेंगे तो वो ऑक्टल में उसको कंसीडर करेगा, और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे तो डेसिमल में कंसीडर करेगा. तो हम ये 0x यूज़ करते हैं. अब इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें 0 to 9 डिजिट्स तो होते ही हैं, बट उसके बाद जो 10 to 15 नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम A to F यूज़ करते हैं, मतलब इसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम
जैसे कि हमने कह दिया 0x(a), 0x2, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमें उसमें स्पेस नहीं देना, कॉमास यूज़ नहीं करने, वही सेम जो कंडीशन डेसिमल इंटीजर में थी. नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट, दैट इज़ रियल कांस्टेंट. अब रियल कांस्टेंट हमने पढ़ा कि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, एक्सपोनेंट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. सो रियल कांस्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. हमको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं हमारी सारी नंबर रेंज को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हम रियल कांस्टेंट का भी यूज़ करते हैं. वो भी आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. तो फ्रैक्शनल रियल कांस्टेंट सिंपल, या हम उसमें फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं. लाइक हम पॉइंट नंबर के बाद भी लगा सकते हैं, नंबर से पहले भी लगा सकते हैं. एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट्स होते हैं, उनमें 2 पार्ट होते हैं. एक हो गया मेंटीसा और एक होता है एक्सपोनेंट. मेंटीसा क्या होता है, जो ई हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट के लिए, उसको मतलब कि ई वो उन दोनों को सेपरेट करता है. मेंटीसा होता है उससे पहले वाला और एक्सपोनेंट बाद वाला. इसका मतलब क्या है वो लेट्स सी है. यहाँ पे हमने क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमने मेंटीसा और एक्सपोनेंट को ई से सेपरेट किया है. 0.54 यहाँ पे मेंटीसा है और -1 यहाँ पे एक्सपोनेंट है. अब हम यहाँ पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसका नंबर मतलब कैसे बनेगा, वो क्या है, वो हम यहाँ एग्जांपल से देखते हैं कि 5.4 × 10⁻⁴, इसको हमने ऐसे लिखा 5.4e⁴, यानी कि जो 10⁻⁴ होती है यहाँ पर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 10⁻⁴ में जो भी है, मतलब जो बेस 10 की पावर है वो हमारे एक्सपोनेंट के साथ आएगी. अब हम इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट को फ्लोट करने में हेल्प करता है. फ्लोट से मतलब कि हम पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं. लाइक मैं यहाँ पर इसको 5.4, फिर ई के आगे जो हमारा ये है ये चेंज हो जाएगा, इसलिए ये उसको फ्लोट करने में हेल्प करें एक तरीके से, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. बट इलीगल जो अगर हम कहें वो मतलब कि जो कंडीशन इसमें अलाउड नहीं है वही सेम कि इसमें हम नॉन डिजिट करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, एम्बेडेड स्पेसेस, कॉमास एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है. नाउ अभी हमने जो पढ़े वो थे न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स. अब हम पढ़ेंगे करेक्टर कॉन्स्टेंट्स. सो इसके अंदर 2 टाइप होता है. एक तो सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट. एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बैकस्लैश कांस्टेंट. सिंगल करेक्टर से मतलब हम जिसमें सिर्फ सिंगल करेक्टर यूज़ करते हैं, लाइक A, B, C, मतलब हम सिर्फ सिंगल करेक्टर यूज़ करें किसी को नेम करने के लिए. बोले इसका नाम A है, इसका नाम B है, बट हम उसको इकट्ठे नहीं यूज़ कर सकते कि हमने ABC किसी का नेम रख दिया, किसी का नाम AD रख, मतलब कि हम इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते हैं उसमें. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट मार्क से. मतलब दोनों साइड सिंगल कोट होना चाहिए, ये नहीं कि एक साइड सिंगल है, एक साइड डबल है, एक साइड कोई कोट नहीं है और एक साइड कोट है, ये हमारे इलीगल में आ जाएंगे. और हम $साइन वगैरह ये सब नॉन डिजिट करेक्टर्स हम यूज़ नहीं कर सकते. आई मीन टू से विदाउट कोट्स, मतलब वो उसको फिर एज अ करेक्टर नहीं कंसीडर करेगा, सिंगल करेक्टर. नाउ कमिंग टू द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट से हमें समझ आ रहा है यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर हो गया, यानी कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जिसमें डबल कोट्स होंगे. इसमें डिफरेंस ये आगे डबल कोट्स लगेंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि हम यहाँ पर भी एक सिंगल करेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बट सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट में हम ज़्यादा करेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते. इसमें भी वही कंडीशन है कि एक साइड पे डबल कोट से एक साइड नहीं है, एक साइड सिंगल एक साइड डबल, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते. बैकस्लैश करेक्टर कॉन्स्टेंट, ये कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं. इनका यूज़ हम आउटपुट ऑफ फंक्शन को मतलब कि हम थोड़ा उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं. लेट अस सी सम ऑफ द बैकस्लैश करेक्टर कॉन्स्टेंट. लुक ओवर हियर, बैकस्लैश n, वी यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स. ये हमें एक न्यू लाइन में एंटर कराने के लिए यूज़ होता है. /a ऑडिबल अलर्ट बेल, अगर हमें कोई बेल का मतलब कि अलर्ट ऐड ऑन करना है हमारे प्रोग्राम में तो हम ये यूज़ करते हैं. बैक स्पेस हमें अगर एक जहाँ पर हम हैं, अगर मैं यहाँ पे हूँ, इससे पीछे वाले पे जाना है तो हम /b यूज़ कर लेते हैं. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ वेरिएबल्स. वेरिएबल इज़ अ डाटा नेम. हम कोई भी टाइप ऑफ डाटा किसी चीज़ में स्टोर करते हैं तो हम उसको कुछ नेम देते हैं. इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ आइडेंटिफायर एज आई टोल्ड यू.
इसकी फुल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. अ वेरिएबल इज़ अ डाटा नेम दैट मे बी यूज टू स्टोर अ डाटा वैल्यू. नाउ लेट्स कम टू इट्स सिंटेक्स. अगर हमें इसे सी प्रोग्राम में हमें किसी वेरिएबल का कुछ नेम देना है तो हम कैसे करेंगे. हम पहले उसकी डाटा टाइप देंगे. डाटा टाइप हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट फॉर एग्जांपल इंट टाइप का डाटा हमें स्टोर करना है तो हम यहाँ पर इंट लिख देंगे. देन हम यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम देंगे A B C अप टू जहाँ तक भी हमें जितने भी उसी टाइप के वेरिएबल चाहिए हम उतने यहाँ पर लिख देंगे. सो वी कैन सी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ये सब तो वेरिएबल नेम्स हैं. इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से और एंड में एक सेमीकोलन आता है. सेमीकोलन हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. और यहाँ पर डाटा टाइप, हमारी डाटा टाइप मैंने बताया कि कुछ भी हो सकते हैं. कैर टाइप का डाटा हम इंट टाइप का डाटा स्टोर करा सकते हैं. और ये फ्लोट, डबल, ये सभी आगे मैं अभी आपको समझाती हूँ. नाउ सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि हमने अगर किसी वेरिएबल में सम स्टोर करना है हम उसका नाम सम दे सकते हैं. हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है. हम इट्स नॉट अ कंपल्शन, हम ऐड भी दे सकते हैं उसका नाम. हम उसका नाम एडिशन भी दे सकते हैं. देन एवरेज स्टोर कराना है, टोटल, इंटरेस्ट, मार्क्स, ये तो कुछ एग्जाम्पल है बट डिपेंड करता है जिस टाइप का नेम हमें देना है. नाउ लेट अस हैव अ लुक ओवर सम रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स. वेरिएबल नेम को भी वही सेम रूल्स हैं कि लेटर से बिगिन करना चाहिए. इसमें अंडरस्कोर भी हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर, बट ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड. तो हम अंडरस्कोर से उसको ज्वाइन कर देते हैं. अगर हमें कुछ जैसे मुझे नाम रखना है टोटल मार्क्स, तो मैं टोटल मार्क्स में से स्पेस नहीं दे सकती. तो डिफरेंट इसको करने के लिए स्पेस देने की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ कर देते हैं. और हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं. एज आई टोल्ड, अपर केस और लोअर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों के सेम मीनिंग नहीं होते, दोनों का डिफरेंट मीनिंग होगा. अब यहाँ पर सम लिखेंगे या ये वाला सम लिखेंगे या ये वाला सम लिखेंगे, तीनों अलग अलग वेरिएबल की तरह काउंट होंगे. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ये छोटी छोटी गलतियाँ, इससे हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क नहीं करता और बहुत एरर्स आते हैं. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और इनवैलिड के एग्जांपल, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको डिजिट से स्टार्ट कर दिया. ब्रैकेट्स, ब्रेसेस यूज़ नहीं कर सकते हम. यहाँ पे भी हमने डिजिट से स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे भी हमने एक नॉन डिजिट करेक्टर यूज़ कर दिया. अब लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डाटा टाइप्स. व्हाट डू वी मीन बाय डाटा टाइप्स? डाटा टाइप मीन्स विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. एज आई टोल्ड यू कि हमने कोई वेरिएबल का नेम दिया, अब हम बताएंगे ना कंप्यूटर को कि हमने किस टाइप का डाटा उसमें स्टोर करना है, तो हम वो डाटा टाइप बताएंगे. वी कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ डाटा टाइप ओवर हेयर. लाइक हमने कोई नेम देना है तो हम उसको क्या टाइप ऑफ डेटा में स्टोर कराएंगे. अगर हमें किसी की एज स्टोर करनी है तो वो इंट टाइप का डाटा होगा. लाइक अब हम देखते हैं 3 टाइप डाटा टाइप्स दैट आर सपोर्टेड बाय NCC और वी कैन से ISOC. सो पहली होती है प्राइमरी डाटा टाइप्स, हम इनको बोलते हैं इनबिल्ट डाटा टाइप्स. और सेकेंड होती है डिराइव डाटा टाइप्स. देन थर्ड आती है हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स. नाउ लेट अस लुक एट देम इन डिटेल. प्राइमरी डाटा टाइप्स मतलब कि ये प्री डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी होती है. हम इनको यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, हमें पता है इनका क्या मीनिंग है, क्यों है ये, इनकी रेंज क्या है, इनका स्टोरेज क्या है. नाउ लेट अस सी. अगर हम देखें तो मेनली 5 टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा टाइप्स होती हैं. एक होती है इंट, एक होती है कैर, फिर फ्लोट, फिर डबल और फिर वॉइड. देन डिराइव डाटा टाइप्स, वो हम इनबिल्ट डाटा टाइप से डिराइव करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप ऑफ डेटाज होते हैं. हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है जिसके अंदर हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है एक ही टाइप का, तो फिर हम एरे यूज़ कर लेते हैं. फिर अगर हमें कुछ फंक्शंस भी बनाने पड़ जाते हैं बार बार यूज़ करने के लिए, तो हम उनको डिराइव कर लेते हैं हमारी पहले वाली डाटा टाइप्स में से. जैसे कि अगर मुझे रोल नंबर स्टोर करना है तो मैं एक एरे ले लूँगी, वो इन टाइप का ही डाटा स्टोर करेगा. मतलब वो होमोजीनियस डाटा ही सारा स्टोर करते हैं, जो डिराइव डाटा टाइप्स होती है. देन आती हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स. अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें कुछ ऐसा यूनियन ऑफ डाटा टाइप्स बनाना पड़ जाता है. जब मुझे रोल नंबर भी स्टोर करना है, मुझे नेम भी स्टोर करना है, तो फिर क्या करते हैं हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक या फिर यूनियन बना लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट यानी कि हेटेरोजीनियस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं.
सो बाय नाउ हमें मेजर डिफरेंस इन तीनों का क्लियर हो गया होगा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स। सबसे पहले प्राइमरी में भी हमारे पास जो 5 डाटा टाइप्स उसमें आते हैं इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। अब इंटीजर तो हमें पता ही है, जो एक रेंज ऑफ होल नंबर होती है, होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं। उनकी रेंज डिपेंड करती है जो भी हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइप का प्रोसेसर है उस पर। बट बेसिकली जो हमारे पास मशीन्स होती हैं उनके अंदर हम इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है -32768 to 32767। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी एग्जाम्स, हमारे को कई बार वाइवा में भी पूछी जाती है। तो -32768 to 32767। और इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो हमें 2 बाइट्स का डेटा हमारा इसमें स्टोर हो जाता है। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे हमें लिखा है 1 वर्ड ऑफ स्टोरेज। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2 बाइट्स होते हैं वो एक वर्ड को मतलब कि बनाते हैं मिलके। तो हमारे एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो पहला सबसे बड़ा वर्ड, फिर उससे छोटा बाइट, फिर उससे मतलब कि सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स डाटा स्टोर करने की। तो हमारा 32 बिट्स में या फिर कह सकते हैं 16 बिट्स का होता है जनरली हमारा इन टाइप ऑफ डेटा जो स्टोर होता है। तो हम वेरिएशन देखना चाहें अगर इंट भी हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, तो शॉर्ट इंट मतलब कि सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा उसमें स्टोर होता है। इंट जिसमें हमारा 1 वर्ड या फिर हम कह सकते हैं 2 बाइट स्टोर हो रहा है। फिर लॉन्ग इंट जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 4 बाइट्स या फिर 2 वर्ड्स, या हम शॉर्ट हम बताना चाहें तो 32 बिट्स ऑफ डेटा हमारा स्टोर हम कर सकते हैं। ना एज वी नो कि हमारे कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंट और एक फ्लोट। तो हम जब डाटा टाइप वेरिएबल का लेंगे तो वो भी फ्लोट हो सकता है। फ्लोट में भी सेम चीज़ है कि फ्लोट के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो फ्लोट के अंदर हम 4 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद डबल आ जाता है, डबल में 8 बाइट्स ऑफ डेटा, और लॉन्ग डबल उसके अंदर हम 16 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से हमारे डाटा टाइप चूज़ कर लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड डाटा टाइप, दैट इज़ कैर। कैरेक्टर हम इसको लिखते हैं कैर, कीवर्ड इसका कैर है। कैर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए हम जनरली सिर्फ 1 बाइट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ 8 बिट्स। एक चीज़ याद रखने की है कि कभी भी हमारा 1 बाइट से नीचे हम स्टोर नहीं कर सकते। लाइक हम हाफ बाइट या हमने कह दिया कि हमने 1.5 बाइट डाटा स्टोर किया, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारा एक स्टैंडर्ड जो सबसे बेसिक सबसे छोटा स्टैंडर्ड है वो है 1 बाइट। ऑल्सो हम यहाँ पे देख सकते हैं अनसाइन कैर्स और साइन कैर्स। इसका क्या मतलब है? अगर हम क्या कहते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि -128 to 127, और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव में कहें तो वो 0 to 255 हो जाएगा। ऐसे इंटीजर में भी सेम है कि अगर हम इसको यहाँ पर अनसाइन कर देंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा और फिर आगे इन दोनों का मतलब कि एक तरीके से उधर उस साइड शिफ्ट हो जाएगी इनकी रेंज। Now let's look at the last data type, that is void type of data. void type of data हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई फंक्शन या फिर हमें कोई वेरिएबल मतलब कुछ भी हमें स्टोर करना है और उसकी हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए। मतलब हम कुछ सम कर रहे हैं तो हमें सम के हमें रिटर्न में हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें इंट वैल्यू चाहिए, फ्लोट टाइप का डाटा चाहिए। लेकिन कई बार हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए होता, बस हमें उससे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें परफॉर्म करानी होती हैं। वो हम आगे आएंगे हमारे पास फ्यूचर में, तब हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कम टू दिस टर्म, दैट इज़ द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव. What do we mean? It means that we are using it for defining some constant or symbolic constant, we can say. Now what do we mean by symbolic constant? हम कोई सिंबल दे रहे हैं किसी कांस्टेंट के लिए ताकि हम उसे बार बार यूज़ कर सकें। लाइक उसका हमारे पास सिंटेक्स है यहाँ पे। पहले तो हम हैश डिफाइन लिखेंगे, देन वी विल गिव इट स्पेस, देन वी विल गिव इट अ सिंबॉलिक नेम, लाइक वी हैव गिवन इट पाई वी ऑल नो पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.14। अब हमने कोई प्रोग्राम लिखा, कहीं पर हमने 22/7 यूज़ कर लिया और कहीं पर 3.14। एज वी नो 22/7 इज़ नॉट प्रॉपरली इक्वल टू 3.14। सो हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, एरर भी आ सकता है। इसलिए हम पाई को हम 3.14 हमने अब दे दिया। अब हम कहीं पर भी उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास 3.14 ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम
उसको ऐसे यूज़ करते हैं। और हम उसको ज़्यादातर हम कैपिटल्स में नेम देते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर में, और वेरिएबल्स को भी हम स्मॉल लेटर में दे देते हैं। तो इसलिए हम उनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बाकी हम उनको स्मॉल में भी दे सकते हैं। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हैश और डिफाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, वरना एरर आ जाएगा। लुक एट द एडवांटेजेस। एज आई टोल्ड यू कि हम इजी वे है एक हमें कांस्टेंट वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराने का। इससे रीडेबिलिटी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम बढ़ जाती है, और हमें बार बार वो कांस्टेंट वैल्यू को रिपीट नहीं करना पड़ता। एंड लास्ट की, अगर हमें कोई कहीं पर भी अगर सिम्बॉलिक कांस्टेंट हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत लिख दिया, तो हमें बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमने सिंपली जाके ऊपर डेफिनेशन में उसको चेंज कर दिया, पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू अनदर हैश directive, that is hash include directive. These link the preprocessor files in our C library to our program to use the functions like हम printf यूज़ करते हैं, scanf जो कि अभी मैं आगे बताऊंगी, वो कहाँ स्टोर होते हैं। हमारे कंपाइलर को कैसे पता कि हमने क्या ये लिखा है, क्या हम कह रहे हैं उसको लिंक करने के लिए, जब हम उस फाइल का नेम दे देते हैं। वो फाइल ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइल मतलब पहले से ही किसी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फाइल हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फाइल है, वो हमने भी क्रिएट की हो सकता है, हमने किसी फंक्शन को डिफ़ाइन किया हो सकता है उस फाइल के अंदर, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम फाइल यूज़ करते हैं वो होती है stdioh। तो और भी हम कुछ फाइल यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम यूज़ करते हैं stdioh, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो हमारे होते हैं, जैसे कि printf, scanf। फिर हम और यूज़ करते हैं conio.h, इट इज़ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर स्क्रीन, getch, ये सब फंक्शन जो हमें यूज़ करने होते हैं, तो हम इसलिए conio.h यूज़ करते हैं। हमें स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करने तो हम string.h यूज़ करते हैं। हमें ग्राफिक्स के फंक्शन यूज़ करने हैं तो हम graphics.h, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए math.h, और कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो हम यूज़ करने तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच यूज़ करते हैं। बेसिकली यही होते हैं हमारे पास 6, और अगर हमें कोई अपनी फाइल यूज़ करनी है तो हम वो कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू मेन फंक्शन, जिसमें हम अपना प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं और अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। लेट अस लुक एट इट्स डेफिनेशन, दैट इज़ फंक्शन इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ये विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसके अंदर ही हम अपना सब कुछ मेन एग्जीक्यूटेबल पार्ट लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए अपने प्रोग्राम से, हमने क्यों लिखा है ये प्रोग्राम। फंक्शन तो हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। हम अभी तो हम बट मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं। मेन तो एक, लेकिन मेन फंक्शन एक ही होता है। मेन फंक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बोला कि हम एक ही मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा मेन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो समझ नहीं पाता कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो बताता है कि कहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। नाउ वी कैन सी मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम फंक्शन नेम लिखते हैं, देन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ब्रेसिस से स्टार्ट होता है, ओपन ब्रेसिस, देन हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखते हैं, देन हमारा क्लोज ब्रेसिस, दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ आवर फंक्शन। नाउ लेट अस लुक एट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन स्टेटमेंट। तो मेन के अंदर हमारे पास बेसिकली 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। हम सिंपल मेन यूज़ कर सकते हैं, इंट मेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने यहाँ लिखे हुए हैं। बट इनका डिफरेंस क्या है? मेन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट टाइप का हो जाएगा। अब इंट क्या होगा? जो हमें इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड मेन यानी हमें वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन वॉइड लिखने का मतलब भी सेम यही है। मेन वॉइड मेन वॉइड लिखने का मतलब यहाँ पर यही सेम है, और इंट मेन वॉइड लिखने का मतलब ये यहाँ पर यही है। क्यों? वॉइड का मतलब नल है, हमने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा या वॉइड लिखा, बात सेम रहेगी। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज। नाउ लेट अस कम टू द मेन टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। और इससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें बेसिक कैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो पहले तो हम यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं, देन आई विल शो यू अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम।
सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम ना कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स हम आज सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उधर हम कमेंट्स देते हैं। क्यों? ताकि सामने वाले को पता चल सके कि हम क्या सोचते हैं या फिर हमें वो पोस्ट कैसी लगी। सिमिलरली हम प्रोग्राम में कमेंट्स देते हैं ताकि जो यूज़र उसको या फिर कोई अनदर कोई पढ़ रहा है यूज़र या प्रोग्रामर, तो उसको समझ आ सके कि हमने इस प्रोग्राम में एक्चुअली कहाँ पर क्या किया है। स्टार्टिंग में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमने ये क्या प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम के बीच में भी कई बार हम लोग देते हैं ताकि पता चल सके कि उस पर्टिकुलर स्टेप में हमने क्या किया है। 2 टाइप ऑफ कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर हमें एक ही लाइन में कमेंट देना है तो हम उसके लिए हम डबल स्लैश यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम मल्टीपल लाइन में देना है तो हम उसके लिए स्लैश और स्टार यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं वो। ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर दैट कभी भी हमारे जो फाइल्स हम बता रहे हैं उनके साइड में हम सेमी कोलन नहीं देते। सेमी कोलन हम हमेशा जो मेन प्रोग्राम के अंदर की स्टेटमेंट्स है, किसी भी फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट है, वहाँ पर देते हैं जब हम कुछ डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब हम कुछ डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, जब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हम एक प्री डिफाइंड हम कुछ यूज़ कर रहे हैं फंक्शन को। जैसे कि हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं तो हम प्रिंट एफ के एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं, स्कैन एफ के एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं। तो वो हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बट हम मेन फंक्शन को तो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं ना। तो जब हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे तब भी हम इंट मेन लिख रहे हैं तो उसके साइड में सेमी कॉलन नहीं देंगे। हम हैश डायरेक्टिव्स दे रहे हैं तो हम उनके साइड में सेमी कॉलन नहीं देंगे, और डॉक्यूमेंटेशन करते हुए भी हम कोई सेमी कॉलन नहीं देंगे। फिर आगे हमारे सिंबॉलिक कांस्टेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो भी हम मेन फंक्शन से पहले ही डिफ़ाइन करते हैं हमेशा। देन कम्स द ग्लोबल वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं हम। जब ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो हमें एक मेन फंक्शन के बाहर हमने कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, उसमें भी हमें वो सेम वेरिएबल यूज़ करना है, तो हम उसको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं ना। फिर मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। देन द मेन फंक्शन पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज़ डिक्लेरेशन पार्ट जिसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, या फिर हमें जो भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एरे स्ट्रक्चर, हम उन सबको डिक्लेयर कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारे सब प्रोग्राम सेक्शन होता है उसमें हम अपने कुछ अलग फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस दैट आर। सो हम यहाँ पर यूज़ करें टर्बो C++ टू राइट दिस प्रोग्राम। अगर आपके पास PC नहीं है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर जैसे कि प्रोग्रामीज भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस प्रोग्राम। सो फर्स्टली हमने यहाँ पर की है डॉक्यूमेंटेशन में हमने क्या बताया कि हम राइट अ प्रोग्राम टू रीड रेडियस एंड फाइंड एरिया, कि हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं टू हमें रेडियस, एक तो हमें पता करनी है क्या रेडियस है सर्कल की, देन उससे हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर हमने उसको प्रिंट भी करा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हमने यूज़ किया है इंक्लूड stdio.h, फिर हमने यूज़ किया है conio.h, और ये क्या है हमारी हेडर फाइल। हमने यहाँ पे एक सिंबॉलिक कांस्टेंट दिया, आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज़ समझाने के लिए ये प्रोग्राम यूज़ किया हमने यहाँ पे। देन फिर हमारे पास अभी कोई ग्लोबल वेरिएबल का नीड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई ग्लोबल वेरिएबल की डिक्लेरेशन नहीं की है। जब हमें यूज़ पड़ेगी तो हम उसे कहाँ डिक्लेयर करेंगे, वॉइड मेन से पहले। देन हमने यहाँ पर यूज़ किया है मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे वॉइड मेन लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ हमें रिटर्न में नहीं चाहिए, फंक्शन से रिटर्न में नहीं चाहिए, नॉट वेरिएबल, फंक्शन से रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमने वॉइड मेन ले लिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मेन ले लेती तो क्या होता, यहाँ पर वो इंट टाइप का अपने आप उसको कंसिडर कर लेता। देन हम यहाँ पर डिक्लेरेबल पार्ट, यानी कि हम यहाँ पर डिक्लेरेशन करें वेरिएबल डिक्लेरेशन। देन हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाया, वो क्यों लगाया वो हम आगे समझते हैं। देन प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जो सिर्फ हमें आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी चीज़ प्रिंट करानी है तो हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एंटर रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंटर रेडियस कर दिया है ताकि पता चल जाए कि अब यहाँ पर हमको रेडियस एंटर करानी है। देन हमने स्कैन एफ किया, स्कैन एफ रीड करने के लिए, यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं हम।
देन हमारे पास रेडियस आ जाएगी यहाँ पे। ये पूरा क्यों ऐसे लिखा है इसका सिंटेक्स वो मैं आपको समझाती हूँ आगे। देन एरिया, एरिया हमारे पास यहाँ पर है पाई, फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, देन आर, देन मल्टीप्लाई आर, फिर सेमीकोलन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेमीकोलन हमेशा टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट को यूज़ करता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा सके। देन हमने यूज़ किया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हमने हमारा एरिया प्रिंट कराया है। देन हमने गेट सी एच लगाया, उसका भी यूज़ आगे समझाते हैं। सो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, हमारा जो भी हमें कोई बेसिक प्रोग्राम लिखना है, लाइक हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है, अपना नेम प्रिंट कराना है, कुछ भी, तो हम कैसे करा सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। और इसको थ्योरी एग्ज़ाम में हम एज इट इज़ हम ऐसे समझा के आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया एरिया इज़ इक्वल टू पाई इंटू आर, तो वो हमने एक असाइन कर दिए और एरिया को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी कि वो क्या हमारी वैल्यू है उसकी। तो हम कभी भी किसी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल ले लिया ए, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पर 10। तो वो एक्सप्रेशन, हमने कोई एक्सप्रेशन कुछ भी यहाँ पर उसको असाइन किया अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप, वो हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट हो जाती है। हमेशा असाइनमेंट कैसे होती है, यहाँ से यहाँ, मतलब कि जो वैल्यू हमने यहाँ दी है वो इसको असाइन होगी। नाउ मल्टीपल असाइनमेंट, इट इज़ वेरी सिंपल कि जब हमें एक ही एक्सप्रेशन को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना है तो क्या करेंगे हम कि बस इज इक्वल टू पुट करके हम उन सबको असाइन करते जाएंगे। बस दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल असाइनमेंट एंड मल्टीपल असाइनमेंट। ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी हम असाइनमेंट कर रहे हैं वो हम प्रोग्राम के बीच में करें, मतलब मेन फंक्शन के अंदर नहीं, हम उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे भी सीधा वेरिएबल नेम के साथ ही लिख सकते हैं। नाउ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने इंट लिखा, फिर सम की वैल्यू हमने पहले ही इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं इसको, हमने उसको इनिशियलाइज कर दी कि हमने 10 दे दी। सो यहाँ पे एवरेज की वैल्यू हमने दे दी, जैसे कि येस, कि हमने कोई कैरेक्टर लिया है कि हमें येस चाहिए तो क्या प्रिंट कराना है, तो ए, मतलब ये सब हमने ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वी कैन से बिफोर मेन फंक्शन। ना हमारे पास ये ओपन हो चुका है टर्बो C++। अब हमें यहाँ पर कोई फाइल ओपन करनी है तो हम कैसे करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो कैसे ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करके उस फाइल का नेम लिख देंगे यहाँ पे हम। जैसे मुझे एरिया वाली फ़ाइल चाहिए तो हम इसकी एक्सटेंशन होती है .c, अगर हम C++ कर देंगे तो वो दूसरी लैंग्वेज में चला जाएगा सारा प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर एरिया C वाली फ़ाइल हमें ओपन करनी है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, देन हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज हम नेम भी टाइप कर सकते थे। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको कुछ और नाम देना होता तो मैं कैसे करती, यहाँ फाइल में जाके सेव एज़ पर जाना है, फिर हम यहाँ पर दूसरा नेम दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर नेम चेंज नहीं करना तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, हमारा नेम वही रहेगा। अब इसको हमें थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देन ये सब मैंने आपको बता दिया। हम पहले प्रोग्राम को क्या करते हैं, पहले हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम, यानी कि हम लिख लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इस रन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम Ctrl+F9 भी प्रेस कर सकते हैं या सीधा रन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पहले प्रिंट कराया था कि हमें एंटर रेडियस करनी है, मैंने यहाँ पर एंटर रेडियस कर दी 4। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगी तो मेरे पास एरिया प्रिंट होके आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर गेट कैरेक्टर लगाया था तो हमारी स्क्रीन पे जैसे हमने कुछ भी की प्रेस करेंगे तो वापस हम अपने प्रोग्राम पर आ जाएंगे। नाउ अगर हमें इसी प्रोग्राम को सेव करना है तो हम कैसे करेंगे, या तो हम फाइल में जाके कर सकते हैं या फिर हम F2 प्रेस कर सकते हैं। और हमें कुछ ओपन करना है तो हम F3 प्रेस कर सकते हैं। कई बार हमारे जो होता है कि माउस वर्क नहीं करता तो हम क्या करते हैं F10 प्रेस कर देते हैं। फिर F10 प्रेस करने से कंट्रोल यहाँ वाली इस पर आ जाता है, फिर हम उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। देन अगर हमें जो प्रोग्राम है उसको सीधा रन नहीं करना, हमें सिर्फ कंपाइल करना है तो हम कंपाइल पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा जो हमारा प्रोग्राम है वो सारा कंपाइल हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट किया वो है Alt+F9। देन हमें उसको सीधा रन कर देना है। रन करने के बाद हमारे पास हमारा प्रोग्राम आ जाएगा, आई मीन आउटपुट। ऑल्सो जो हम यहाँ पर हेडर फाइल्स बोलते हैं उसका मतलब होता है कि हिडन फाइल्स है, हमें दिखते नहीं हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ C में ऑलरेडी सेव्ड होती हैं।
If I helped you a little bit, you can subscribe to my channel to motivate me and drop your suggestions and feedback in the comment section.